कर दिया है और यह कहा है कि वो नजफ की जगह बसरा चले जाएं। इराक में जहां हर ओर खतरा इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ऐसे में नजफ से 600 किलोमीटर दूर बसरा तक जाना भी कम जोखिम की बात नहीं है। इस कंपनी की ओर से कह दिया गया है कि 230 भारतीय बसरा चले जाएं और इराक के मौसूल से अगवा 40 भारतीयों का भी कोई पता नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे स्थित कंपनी से इराक के अल कफिन अस्पताल में काम करने गई 10 लोगों को भी अगवा कर लिया गया है। इराक सरकार ने दावा किया है कि अगवा सभी भारतीय सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है, इराक में फंसे भारतीयों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो खुद पूरे मामले पर नजर रखे हुई हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज शाम 5 बजे इराक में फंसे लोगों के परिजनों से मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया है और उधर इराक की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालात से निपटने के लिए इराक ने अमेरिका में सैन्य कार्यवाही की अमेरिका से गुहार लगाई है। हालांकि अमेरिका ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो सवाल अब यह है कि क्या अमेरिका इराक पर अटैक करेगा, क्या कार्यवाही करेगा अमेरिका, क्या इराक की स्थिति जो लगातार बिगड़ती जा रही है उसमें अमेरिका अपना दखल देगा। और सीधे चलते हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Questions on the issue which is primary for today, and then on any other issue, if there are a couple of other questions, I'm willing to take those. With those introductory remarks, let me start by saying that since we met yesterday, the primary focus of attention of all officials in the Ministry of External Affairs has been related to the situation of Indian nationals in Iraq. And I now have further information that I can share with you on this matter. I can now further confirm to you that our initial information, based on inputs of the Iraqi Red Crescent, of 40 Indian nationals being in custody, have been reconfirmed by the Iraqi government. We have been informed by the Iraqi Foreign Ministry that they also have been able to determine the location of where these abducted Indian nationals are being held captive with workers of a few other nationalities. Our embassy in Baghdad has been persistently following this matter up with the Iraqi authorities, and it has been strengthened with the arrival of Mr. Suresh Reddy, who joined earlier today. I understand that there are several meetings planned during the course of the day between Indian embassy officials and Iraqi authorities on this subject. In New Delhi, the Crisis Management Group has met twice today. On both these occasions, the External Affairs Minister, Srimati Sushma Swaraj herself, has chaired the meetings. She has also since yesterday talked to the Punjab Chief Minister, the Kerala Chief Minister, and the Deputy Chief Minister of Punjab. The senior-most official of the Ministry of External Affairs handling issues in the region, that is Mr. Anil Wadhwa, Secretary East, has had 2 conversations with the Iraqi ambassador on this subject. In both these conversations, the information that was conveyed to us in Baghdad was reaffirmed. Our mission in Baghdad continues to assist those Indian nationals who would like to leave the region, even from areas where security is not tenuous as yet. And we keep in touch with Indian nationals in areas where security remains tenuous. Let me assure you again that the Government of India
is giving the highest priority to the welfare, security and safety of our nationals, and we will keep you informed of further developments in this regard. If any of you have questions, I'm willing to answer those questions. Let's take 4 questions on this. Yes, sir. सर, जैसा कि आपने बताया कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, तो क्या वो किस ग्रुप के द्वारा उनको किडनैप किया गया था? जो ISIS ग्रुप की बात हो रही है, क्या वही है या कोई और है? और किस पोजीशन में, क्या वो सेफ है? ये अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अंग्रेजी में सवाल ये जवाब करूं, क्योंकि दिस इज अ सेंसिटिव मैटर. लेट मी स्टार्ट बाय योर लास्ट क्वेश्चन. देयर इज नो सेफ्टी इन कैप्टिविटी. Safety is when people are in places where they are welcome. So that's my first answer to that first question. As regards where they actually are located, we do have an understanding of the location, but given that the matter is something which is underway, there are issues which are being focused on. At this stage, I will not be able to share information on either the location of that place or what the Iraqi authorities have shared with us in terms of possibilities. You have to understand, with a situation such as this, which is ongoing, there are information, there are leads, but we only provide you with credible, determined information which has been verified. So at this stage, I will not go further in those terms. Yes, ma'am. 1 minute. सर, जो वहाँ पे किडनैप हुए लोग हैं, उनके कुछ फैमिलीज का कहना है कि उनकी बात हुई है और उनका कहना है कि हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है. बाहर जाएंगे तो सिक्योरिटी आपको शूट करेगी और हमारे ऊपर नाम आएगा. इसलिए जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम जरूर आपको छोड़ेंगे. ऐसा उनके फैमिली मेंबर्स का कहना है. देखिए, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं. बस मैं आपको कई बार कह चुका हूं, डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडियन नेशनल्स इज नेवर एन इशू. अगर किसी को जो वहां है और कहीं और भी हैं इराक में, डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत पड़े तो उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि हम जो कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं, उसमें कल मैंने बताया था तकरीबन 65 टेलीफोन कॉल्स आए थे. आज दोनों दिन मिलाकर आज 1 घंटे पहले तक 130 कॉल आए थे, और इस 130 कॉल्स में तकरीबन 50 से ज्यादा कॉल थे इंफॉर्मेशन के बारे में. यानी कि लोग पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे कोई जान पहचान के हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन. और तकरीबन 40 कॉल ऐसे आए हैं जिनमें लोग इवैक्यूएशन या मदद चाहते हैं वापस आने की. उन सबको मदद की जा रही है. और मैं फिर बता सकता हूं कि इराक से हमारे पास यहां पर दिल्ली में ऐसे 15 कॉल आए हैं जिनमें लोग कुछ मदद चाहते हैं. तो जिनको मदद चाहिए, आपके पास टेलीफोन नंबर है, वेबसाइट पर टेलीफोन नंबर है, ईमेल नंबर है, वो बस टेलीफोन करें और डॉक्यूमेंटेशन का इंतजाम किया जाएगा. जस्ट 1 मिनट. यस, जस्ट यस सर. सर, कल आपने कहा था कि फ्राइडे को 100 लोगों की पहली बैच आएगी दिल्ली, लेकिन जिस टर्किश कंपनी की आपने बात की थी, उन्होंने आज मना कर दिया है कि हम आपको वापस नहीं भेजेंगे और आप नजफ से बसरा चले जाएं, जो कि 600 किलोमीटर है, और उसके लिए $1000 लोगों से मांग रहे हैं. लोग हमारे यहाँ चैनल में फोन करके ये चीज बता रहे हैं. आपके चैनल ने मुझे 1 घंटा पहले ये बताया है. मैंने इमीडिएटली हमारे एम्बेसडर को बता दिया है ये, और इसका जवाब मिलेगा. कल आपने 2 घंटे मुझे टाइम दिया था, मैंने उन 2 घंटों में जवाब दे दिया था. अभी तो 1 घंटा हुआ है. हम कोशिश करेंगे. देखिए, जब ऐसी मुश्किलें होती हैं तो इसमें वक्त लगता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है कोशिश करने में, और इस पर हम जरूर कोशिश करेंगे. यस सर, 1991 में जब पहली बार इराक की क्राइसिस हुई थी,
तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को और विशेष रूप से एक मिशन के तहत वहां पर जितने भी भारतीय स्वदेश वापस आना चाहते थे उन लोगों को वापस लाया गया था। बहुत से ऐसे इंडियंस हैं वहां पर और दिन प्रतिदिन जो है वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। क्या सरकार इस बारे में भी कुछ सोच रही है कि कोई एक अभियान चलाया जाएगा जिससे कि वहां पर जरूरतमंद लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके? मैं जवाब तो दे दूं उसके बारे में, उसके बाद आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। आप जो कह रहे हैं 1991 में मैं भी था वहां पर, उस इवैक्यूएशन में मैं भी इन्वॉल्व था। आपको पता है 1,40,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था और उस पूरे ऑपरेशन में बात यह थी कि कुवैत का एयरपोर्ट बंद था और बगदाद का एयरपोर्ट बंद था, इसीलिए लोगों को जाना पड़ा था अमान या सऊदी अरेबिया। इन दोनों जगह से प्लेन उड़ रहे थे तो काफी दूर थी और उनके पास क्योंकि ये ज्यादातर लोग थे जो कुवैत में रेजिडेंट थे, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और बैंक्स पूरे बंद थे क्योंकि तब ऑक्यूपेशन था कुवैत का। इस वजह से भारत सरकार ने ये कदम उठाया था उस वक्त। अब एरबिल का एयरपोर्ट खुला है, बगदाद का एयरपोर्ट खुला है। इसी तरह जैसे कि अभी हमारे जो डिप्लोमेट है मिस्टर सुरेश रेड्डी वहां पहुंचे हैं आज सवेरे, और अगर कोई भारतीय को जाने की वापस आने का कोई मुश्किलें हैं तो हम बिल्कुल मदद करने में तैयार हैं। यस यू वांटेड अ फॉलो अप ऑन दिस। यस आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय 4 बट यस। कमर्शियल फ्लाइट्स के अलावा क्या कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी करेगी कि एयरफोर्स के प्लेन्स भेजे जाएं, क्योंकि 2 दिन पहले एयरफोर्स ने कहा था कि हम इसके लिए तैयार हैं। I will not get into what others have said. Only when flights, normal communication is not available would we look at other options. Communications and airports both in Baghdad and Erbil are available. Flights of a commercial nature are flying out. There are no restrictions of travel from these two places. The difficulties that our nationals face are in the affected areas. In those areas, the problem remains that it is difficult to use surface transport to reach any of these places. We are looking at various options on this, and we will examine what will be the best possible option, taking into consultation the local authorities and their view, as well as the ground level situation there, where we are in touch with humanitarian organizations and other organizations. Yes. No, just a minute. Yes. Coming back to the question that one of the victim's relative, he's saying that he's spoken to the victim and he says that will release the hostages to the Iraqi authorities unless some Indian, representative go. सैयद अकबरुद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, जब लाइव इंडिया की ओर से उनसे सवाल पूछा गया कि उस कंपनी ने मदद करने से मना कर दिया है जो कल तक वायदा कर रही थी, और ये कहा है कि वो 600 किलोमीटर दूर 240 लोग चले जाएं, तो सैयद अकबरुद्दीन उन्होंने कहा कि लाइव इंडिया की ओर से ये जानकारी दी गई है और वो बहुत जल्दी इस पर सूचना देंगे। उस खबर का, उस सूचना का, उस जानकारी का हमें इंतजार है। उन्होंने ये भी माना कि कल 2 घंटे तक लाइव इंडिया ने जो सूचना दी वो काम आई और उसका तुरंत उन्होंने जवाब दिया, और अब फिर वायदा किया है कि वो जल्दी ही इस बात का जवाब देंगे। नजफ में फंसे भारतीयों की मदद करने का निर्देश सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया है। हेल्पलाइन जारी की गई है और साथ साथ जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तब कहा कि अब यह औपचारिक रूप से हो चुका है। इराक की सरकार ने औपचारिक रूप से बता दिया है कि हां, वास्तव में ये 40 लोग किडनैप किए गए हैं और भारतीयों के साथ साथ कुछ और भी देशों के नागरिक हैं। नजफ में फिलहाल 240 लोग फंसे हुए हैं। इन 40 लोगों से इतर जो किडनैप किए गए हैं, ये 240 लोग फंसे हुए हैं और ये जल्दी से जल्दी वापस आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, अपने देश में, अपने गांव में। Mr. Akbaruddin, what fresh dates is the government of India proposing to the Japanese government for the Prime Minister's much looked forward visit to Japan?
Well, perhaps you're aware that the Prime Minister of India is very keen to visit Japan at an early date. Prime Minister has written to Prime Minister Abe on this subject. तो नजफ में जो 240 भारतीय फंसे हुए हैं, लाइव इंडिया ने एक मुहिम चलाई है, उन्हें मदद पहुंच पाए, उनसे बात करा रहे हैं, उनके परिजनों तक मैसेज हम लगातार दे रहे हैं कि किस स्थिति में हैं, किन परेशानियों में वो हैं। ये वो 240 लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं बचा है, उन्हें वेतन नहीं दिया गया है और जो उनकी कंपनी थी वो मदद से हाथ खड़े कर चुकी है और वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। उनके पास कागजात पूरे नहीं हैं, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, किसी के पास कोई और कागज पूरा नहीं है। और जब ये सवाल पूछा गया सैयद अकबरुद्दीन जो विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है उस पर कोई भी फोन कर अगर बताता है कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कोई समस्या आ रही है तो तुरंत वो डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरी मदद की जाएगी। कम से कम इस स्तर पर, इस वजह से कि किसी के कागज पूरे नहीं हैं, कोई हिंदुस्तानी अगर इराक में फंसा हुआ है तो उसकी तुरंत मदद की जाएगी। उस हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत फोन किया जाए। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिए हुए हैं, लेकिन लगातार लाइव इंडिया दूसरी ओर यह भी दिखा रहा है कि जो 240 लोग नजफ में फंसे हुए हैं उनके स्थिति क्या है। उनके मोबाइल रिचार्ज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, उन्हें ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है और उन्हें कहा गया है कि अब वो नजफ से 600 किलोमीटर दूर चले जाएं, न कि भारत वापस लौटें। ये 600 किलोमीटर का सफर उस वक्त में जब इराक की सड़कों पर खतरा ही खतरा है, कैसे तय करेंगे। और उन्हें यह भरोसा भी नहीं कंपनी की ओर से कोई सुरक्षा उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, किसी तरह की कोई सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। डर है, खौफ है और सिर्फ ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी अपने देश वापस लौटे। उन 240 लोगों की आवाज को लगातार लाइव इंडिया मुखर कर रहा है, लगातार लाइव इंडिया पर वो आवाज सुनाई दे रही है। हम बार बार उन तमाम लोगों से बातचीत आपकी करा रहे हैं, परिजन परेशान हैं, उनका हालचाल जानना चाहते हैं और लाइव इंडिया ने ये मुहिम चलाई हुई है, वो 240 लोग कैसे सकुशल पहुंचे। और मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मनीष, लाइव इंडिया ने खबर दिखाई और उसका असर हुआ है, उन 240 लोगों की ओर ध्यान गया है, मदद करने का भरोसा सैयद अकबरुद्दीन अभी दे रहे थे। देखिए देवेश, आपने थोड़ी देर पहले इन भारतीयों से बात की और जिस तरीके से ये जो 230 भारतीय हैं नजफ में फंसे हुए हैं, उनसे ये कहा गया था, जो कंपनी जिसके थ्रू गए थे उनका कहना था कि फ्राइडे को 100 भारतीयों का पहला जत्था इंडिया भेज दिया जाएगा, उसके बाद संडे को बाकी का जत्था भेजा जाएगा। और विदेश मंत्रालय का कहना था कि कंपनी इसके लिए तैयार हो गई है। लेकिन आज भारतीयों ने हमसे बात किया, जो 230 भारतीय हैं, और उनका कहना था कि कंपनी मुकर गई है, उनको भेजने को तैयार नहीं है और उनको 600 किलोमीटर दूर बसरा भेजा जा रहा है, जो जहां वो जाना नहीं चाहते। और जो एजेंट हैं वो एजेंट वहां पर उनसे पैसे मांग रहे हैं, $1000 तक घूस मांगा जा रहा है, ये कहा जा रहा है तभी वो इंडिया भेजा जाएंगे। तो हमने इस चीज को लेकर के विदेश मंत्रालय तक हमने शिकायत पहुंचाई और हमारे जिससे संवाददाता कुमार गौरव वहां पर उन्होंने जो सवाल किया और उसके बाद विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमें ये इसकी शिकायत मिली है, इराक में जो हमारा एम्बेसी ऑफिस है उसको इन्फॉर्म किया गया है और ये कहा गया है कि भारतीयों की वहां पर मदद करे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार वहां पर जो इंडियंस हैं वो परेशान है, कुछ के अगवा होने की बात है, कुछ इंडियंस डरे हुए हैं, वापस आना चाहते हैं। ऐसे वक्त में जब कंपनी मना कर दे किसी को भेजने के लिए तो क्या मैकेनिज्म है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि जरूर जो लोग फंसे हुए हैं उनको अब उम्मीद जग रही है कि विदेश मंत्रालय जिस तरीके से दखलंदाजी कर रहा है शायद उन्हें जल्द भारत आने को मौका मिले। मनीष, सैयद अकबरुद्दीन जिस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे थे, प्रेस से मुखातिब थे और कुमार गौरव ने जब सवाल किया उनसे, हमारे संवाददाता ने, तो कहा कि कल भी मुलाकात लाइव इंडिया के संवाददाताओं से उनकी हुई थी और 2 घंटे के भीतर उन्होंने उस मसले को संज्ञान लिया था और कहा कि अभी 1 घंटा हुआ है, मैं जरूर सारी चीज साफ कर बताऊंगा और कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा। क्या इंतजार सब कर रहे हैं कि क्या करेंगे विदेश मंत्री, क्या करेंगे, विदेश मंत्रालय से क्या खबर है, किस तरह की कोई मदद मिलेगी उन लोगों को जो 230 लोग नजफ में फंसे हुए हैं? देखिए, कल हमने सैयद अकबरुद्दीन को यह मैसेज किया था और उनसे सारी ये जानकारी दी थी। ये बताया था कि जो भारतीय नजफ में
सभी चैनल्स ये कह रहे थे कि सिर्फ 30 से 40 जो इंडियंस हैं उनकी बात हो रही थी। हमने एक पर्टिकुलर शहर का दिखाया था जहां 230 इंडियन फंसे हुए थे, इनके पास खाने को पैसे नहीं है, 3 दिन पुराना ये खाना खा रहे हैं, फोन रिचार्ज करने के पैसे नहीं हैं और सारे वापस आने चाहते हैं। तो हमने शिकायत पहुंचाई थी विदेश मंत्रालय को, और जैसा कि अकबरुद्दीन ने कह रहे थे कि 2 घंटे के अंदर, ये बिल्कुल सही बात है, 2 घंटे के अंदर विदेश मंत्रालय ने पूरी जानकारी भेजी हमारे पास और ये कहा कि हम उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जिस कंपनी के थ्रू गए थे वो, उस कंपनी से कहा गया उनको वापस इंडिया भेजे। लेकिन आज दोबारा जो भारतीय, उन्होंने हमसे बात की और ये कहा कि कंपनी मुकर गई, और सारे काफी डरे हुए हैं, उनके घर के लोग परेशान हैं, जो यहाँ यूपी में गोरखपुर के रहने वाले ये 230 भारतीय परिवार हैं, और ये काफी परेशान है कि कैसे वो आएंगे। अब अकबरुद्दीन का कहना है कि थोड़ा वक्त मांग रहे हैं, जाहिर है उनका वापसी आना बहुत जरूरी है। हमें भी इंतजार है कि वो क्या करेंगे। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले जो तमाम वो लोग फंसे हुए हैं उनसे लाइव इंडिया ने बात करने की कोशिश की थी और वो दर्द जानने की कोशिश की थी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो लोग। तो जयप्रकाश, क्या सोचा है आपने, जब पैसे आपके पास नहीं है, एजेंट ये पैसे मांग रहे हैं वापस भेजने के लिए, तो कैसे आएंगे? सर अब क्या करेगा कोई, अब देखते हैं। जयप्रकाश, कितने लोग हैं आप आसपास इस वक्त? यहाँ पे लगभग 135 हैं। कितने हैं? 230 लोग हैं। आपको पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, और आपके परिजन भी सुन रहे होंगे। जो कुछ आसपास लोग हों उनसे बात कराइए, जिससे कम से कम परिजनों को राहत मिले, उन्हें पता चले कि किस स्थिति में हैं आप। और कौन है आपके पास, बात कराइए उनसे जरा। बस है सर, ठीक है, बात कीजिए, लाइव चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? हेलो जी, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी सर, मेरा नाम राजू चौरसिया है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। कहाँ फंसे हुए हैं इराक में आप? यस सर, हम इस समय करबला में हैं। राजू, सुना है आपकी नौकरी भी चली गई है, आप लोगों को कंपनी ने निकाल भी दिया है, पैसे अपने पास नहीं हैं, एजेंट पैसे मांग रहे हैं, तो फिर क्या सोचा है, कैसे आएंगे? अभी सर देखिए, फिलहाल कंपनी ने हम लोग को दिसाला दिया था, कि तसल्ली भी दिया था कि शुक्रवार को आपको भेज दिया जाएगा बंदे 100 आदमी को करके। आज क्या बोल रही है कि आपको जो सेल्समैन किया था जो एजेंट्स ने, उनके पास भेजेंगे बसरा में। बताइए, यहाँ से बसरा 800 किलोमीटर दूर है, और 800 किलोमीटर जाने में बताइए रास्ते में कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और वहाँ जाने पर वहाँ खाना भी अच्छा से नहीं मिलता है, रहने को भी अच्छा नहीं है, पानी भी नहीं है सर। अभी इस तरह से हम इस हालात में हम क्या कर सकते हैं सर, बताइए। और राजू चौरसिया, ये बताइए कि यहाँ से बसरा कितनी दूर है जहाँ पर आप हैं, और कैसे जाएंगे? कोई इंतजाम किया गया है वहां तक भेजने का? क्योंकि कंपनी कह रही है कि बसरा चले जाइए। नहीं, कंपनी अभी सुबह में इंफॉर्मेशन दिया है कि यहाँ से 3 बसें आएंगी और इस बस में बैठ के आप लोगों को जाना है। यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है बसरा। तो बसरा तक जाने का कोई इंतजाम नहीं है? कोई बस का रास्ता है, बस मंगा रही है कंपनी बस मंगा रही है। और वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ जाना सुरक्षित होगा? आपको वहाँ के हालात कैसे लग रहे हैं? जाना तो सुरक्षित है, सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि रास्ते में क्या पता कौन है। यहाँ के जो भी जितने भी रास्ते हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है रास्ते। हर एक रास्ते पे खतरा है, पूरे रास्ते में खतरा है। और हम सब लोग यही दुआ कर रहे हैं आप जल्दी अपने वतन वापस लौटें। तो अब से कुछ देर पहले ये बातचीत की थी, उन लोगों का दर्द हमने आपको सुनाया था, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी कंपनी ने धोखा दे दिया, और बस यही उम्मीद कि वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जगाओ फाय जिंदगी गुदगुदाओ फाय सैड मूड थोड़ी करो दिल लगी खोलो फाय चिड़को फाय बरसाओ फाय लाइफ मेरा सना मिलाओ फाय लाइफ मेरा सना मिलाओ फाय
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं जो लाइलाज नहीं होती, और ना सहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अगवा, आतंकियों के कब्जे में हिंदुस्तान। लाइव इंडिया की मुहिम। लाइव इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया है। अपनों को बचाना है, भारत वापस लाना है। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। इराक में अगवा 40 लोगों का मिला सुराग। विदेश मंत्रालय का दावा, सुरक्षा कारणों से पता बताने से किया इनकार। विद्रोहियों के कब्जे में सभी भारतीय सुरक्षित। इराक सरकार का दावा। सुषमा स्वराज ने कहा, सरकार नहीं बरतेगी कोई कोताही। भारतीयों को बचाने के लिए लाइव इंडिया ने छेड़ी मुहिम। नजफ में फंसे भारतीयों को वापस भेजने से मुकरी तुर्की की कंपनी। बसरा जाने का दिया निर्देश। 100 भारतीयों को शुक्रवार को भारत भेजने का किया था वादा। रेलवे में एफडीआई पर जल्द हो सकता है फैसला। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा वाणिज्य मंत्री से करेंगे बात। रेल मंत्री ने कहा, रेलवे को कुछ क्षेत्रों में पैसों की सख्त है जरूरत। गृह मंत्रालय में होगा हिंदी में कामकाज। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया निर्देश। करुणानिधि ने जताया विरोध। गृह राज्य मंत्री ने कहा, क्षेत्रीय भाषाओं को भी मिलेगा पूरा सम्मान। महाराष्ट्र के बीड में पुलिस भर्ती के दौरान महिला हुई बेहोश। अस्पताल में भर्ती। बीमार होने से अब तक 5 युवकों की हो चुकी है मौत। फिर उठे सवाल, आखिर कब चेतेगी सरकार। महाराष्ट्र सीएम के लिए शिवसेना ने फिर उछाला उद्धव ठाकरे का नाम। संजय राउत ने कहा, मुख्यमंत्री के लिए है सिर्फ एक ही नाम। बड़ा सवाल, अब बीजेपी का क्या होगा रुख। हंगामे की भेंट चढ़ा उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला दिन। बीएसपी और बीजेपी विधायकों ने कानून व्यवस्था और बिजली पानी को लेकर किया हंगामा। सदन कल तक के लिए स्थगित। बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। जेडीयू के 21 विधायकों ने दिया नीतीश को धोखा। कांग्रेस के 3, आरजेडी के 2 विधायकों ने भी निर्दलीय को दिया वोट। प्रीति की भारत वापसी कल दर्ज कराएगी अपना बयान। आईपीएल सीईओ सुंदररामन का मुंबई पुलिस ने किया बयान दर्ज। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव 20। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। शुरुआत करते हैं खबरों की। फटाफट 20 खबरें आप देखिए। इराक में जारी गृह युद्ध में धीरे धीरे कई और भारतीय नागरिक के फंसे या अगवा होने की खबरें सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक कंपनी के इराक के अल कफीन अस्पताल में काम करने गए 10 लोगों को अगवा करने का
कर लिया गया है और इससे पहले इराक में 40 भारतीयों का पता चल गया है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा के चलते गृह मंत्रालय